Alaikum, how are you? Walaikum salam, I'm good. That's great. So tell us something about yourself. What do you do? I mean, I know you wear so many hats, but still, what do you do? करती क्या हैं आप? I'm gonna start off with my name. मेरा नाम सना गिलानी है और मैं हमेशा से जर्नलिज्म करना चाहती थी. I wanted to be a writer. All right. And even though it's not a very linear career path if you're talking about Pakistan, because यहाँ पे हमारे जो Asian parents हैं, they either want you to be a doctor or an engineer. So I was never interested in either, which is also something which makes it very, very difficult for a child or a sibling or whatever. Like आपका एक वो आ जाता है पाकिस्तानी पेरेंट्स के मुताबिक I'd say कि comparison के फलाने के बच्चे ये करें फलाने के बच्चे ये करें फलाना डॉक्टर बन गए ये डॉक्टर बन गए. So there's an added pressure on, I'd say, writers, artists in our community. Somebody who wants to maybe break the pattern, go someplace else, to decide what they want to be. तो ये शुरू से नहीं सिखाया जाता हमें. True. बाहर की कंट्रीज में ये चीजें आपको शुरू से इनग्रेन्ड होती हैं. आपको बचपन से वो ड्रम्स पे बिठा देते हैं if you're interested in playing drums, because you're going to be a drummer when you grow up. But over here, I had to discover what I liked on my own. There was nobody to guide me. There was no one to tell me कि हाँ नहीं सही है, that this is something you want. This what they said was कि नहीं यार ये इससे पैसे नहीं बनेंगे. ये क्या कर रही हो, ये तो कोई भी नहीं पसंद करेगा, एंड बीइंग अ गर्ल फ्रॉम द सोसाइटी, आपको तो पता ही होगा कि आई एम श्योर के जब आप एक ऊपर से लड़की भी होते हैं तो एक वो कल्चरल सोसाइटल प्रेशर भी आ जाता है आपके ऊपर के भाई म्यूजिक या एक्टिंग या इन चीजों का शौक हो तो थोड़ा सा जरा लुक डाउन अपॉन. अब तो खैर बहुत बेहतर हो गया विद द होल wave of everything that's come our way. I wouldn't necessarily only say feminism, but like everything else, education, movies, a lot of universities also have started training people according to their likes and dislikes. तो मैं I'd say as a millennial मेरे ज़माने में ये सब कुछ इतना common नहीं था. So I had to learn it my way. So I work as a writer, as a journalist, Great. and I also work as a part-time editor. So copyright editing. Okay, so part-time actor, how do you manage that? Because acting is a full-time job. Part-time actor? No, it's not a full-time job, I tell you. So it's something I like doing because my husband is also a professional actor. He's a 24/7 professional actor. It's his All right. career. And so I wanted to be with somebody who would understand art. क्योंकि आर्टिस्ट की आर्ट को कोई आर्टिस्ट ही ज्यादा बेहतर समझ सकता अंडरस्टैंड है. कर सकता है मेरे True. ख्याल से. So he does understand that I have those needs where I would, just to break the pattern. Writing से आप 9 to 5 job, 9 to 5 job, 9 to 5 job, आप तंग आ गए, आप चले गए, या आपने टीवीसी कर लिया, या आपने कोई छोटा मोटा ड्रामे के 2 एपिसोड्स कर लिए, as a supporting cast or whatever. So something that I really like doing is art, movies या फिर method acting, यानी कि जिसमें आप different एक character बन जाते हैं कोई बहुत ही जो मुझे पसंद आ जाए whatever. So Great. I don't think इसमें manage का कोई ऐसा सिलसिला होता है, क्योंकि अगर आप full time actor हैं तो फिर obviously आप बाकी चीजें नहीं कर सकते हैं, लेकिन part time तो is fine. All right. And you're also doing it as a passion? I mean, you like to do Passionate acting? तो मैं सिर्फ म्यूजिक के बारे में हूँ. Music is my life, and it's something that I love. And since my brother is also a professional musician by the name of Mehroz Gilani, Madlock के नाम से शायद लोग ज्यादा जानते होंगे, Battle of the Yeah. Bands में भी थे, सारा कुछ ना. So now he's producing his own music and everything, and alhamdulillah everything's going really really well. That's तो great. म्यूजिक का हमें हमेशा से इनग्रेन शौक था. माय मॉम वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ अ कोरस इन हर कॉलेज डेज. So I think it came from her, and I have a couple of covers on my YouTube channel also, and I plan to come up with originals. तो म्यूजिक मेरा पैशन है. आई थिंक म्यूजिक और एक्टिंग थोड़ा सा जरा साइमल्टेनियसली भी चल रहे होते हैं, बिकॉज यूजुअली एक्टर्स को गाने का भी शौक होता है और म्यूजिशियंस को अपनी ही वीडियोस में एक्ट करने का भी शौक होता है. Yeah. So I'd say it Secondly, it's you are, both ways. yeah.
Hold on, hold. Yeah, and secondly, when you are, I mean, that's the main hub when you are in the acting, when you are in the singing. So it's just like which window you want to open up. So both of the facilities over there, I mean, it's the same field, Yeah, or like it's the same field. But tell definitely. me one thing. I came to know that your mother was a principal in an organization. So how does it come like mother is a principal and daughter? I mean, when she wants to become a content writer, she wants to become a writer. That's quite acceptable. That society will accept. And how does it go? Like, I mean, you and your brother were more into the music and then the acting. तो ये कैसे हुआ कि आपने? I mean, was it easy for you या मुश्किल था? आपने क्या मुश्किलात देखी और किस तरह से ये start हुआ वो बताइए. Yeah, I don't think मैंने कोई मुश्किलात वैसे देखे हैं because my mom was always very liberal. Even though she was a principal, लेकिन principal वो वाली principal नहीं थी कि गुत बना लो और दुपट्टा जो है अपना वो सर पे लपेटो वाली principal नहीं थी वो हमेशा. So she was always giving the liberty to her students to do whatever they wanted to do, and my nana was also like that. So Great. basically, my nana and my mom were in the education sector business, and nana started the whole thing. Sayed Public Schools. So uske baad, when my mom took over, she tried to give the same kind of encouragement, the same kind of love and the liberty that my nana showed to his students and to the people that came to his school. तो उसके मुताबिक I'd say कि आप जब खुद एक अच्छी एग्जाम्पल बच्चों के सामने सेट करते हैं तो they don't need to go out of the way and do something which you will not like. I'll give you an example. मैंने कभी कोई ऐसा गाना या ऐसी एक्टिंग की चॉइस नहीं ली जिससे मुझे लगता हो कि कोई नुकसान हो सकता है. Something as common as I'd say, it's not really common, लेकिन एक था वर्ल्ड टॉयलेट डे के ऊपर उन्होंने एड बनाया था. ठीक है, अब नाउ वी डोंट नो वर्ल्ड टॉयलेट डे भी होता है. तो उसके ऊपर एक मेड दिखाते हैं जो कि सफाई करने जा रही होती है और मैंने उसकी जगह सफाई करती होती है और मैं मालकिन होती हूँ और मैं उसको कहती हूँ कि चलो आज मैंने सफाई कर ली है, आज तुम मेरे साथ बैठ के चाय पियो. So basically, I like to act on the social causes which also give happiness to people around me and they serve a purpose. मतलब खुलेआम फजूल में नहीं मैं कर रही कोई भी चीज ना. अगर मेरा म्यूजिक है तो मैं उस तरह के गाने गाती हूँ कि जो हील कर सके लोगों को. मैं ये नहीं कह रही कि हर गाना ऐसा ही होता है. ऑब्वियसली कुछ आप अपने लिए कमर्शियलिज्म के लिए भी गाते हैं जस्ट टू सर्व योर ओन सेल्फ. But then again, those choices, those little choices that you make are also a result of the training of your parents. And they do end up, making them happy because आपकी creativity आपके parents के through ही आई है. और अगर वो आपके through वो creativity देखेंगे तो उनको भी खुशी होगी. Okay, great. So it was never difficult. All right. That's Also, I have also been working in the education sector. I would like to say, मैंने बहुत सी नौकरी की है सारी जिंदगी. तो ऐसे नहीं है कि मैंने वो try out नहीं किया. Obviously, my mom was a principal. तो उनके स्कूल में भी पढ़ाया है, उनके स्कूल में वर्कशॉप्स भी दी हैं मैंने टीचर्स को और मैंने लर्निंग अलायंस में भी पढ़ाया है. मैंने लाहौर एल्मा में भी क्योंकि विच वाज माय स्कूल तो लाहौर एल्मा में भी कुछ थोड़ा अरसा काम किया है और बाकी जो है LGS में इंटरनेशनल एंड अदर ब्रांचेस ऑफ LGS 15C गुलबर्ग etc. Great. And did you also learn this music thing from someone? I mean, is there any teacher from whom you got this skill and all? And same as for acting and all. एक्टिंग के लिए आप सीख तो सकते हो. यस आई डू अग्री, सीख सकते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स एन इनब्रेड थिंग ऑल्सो. मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके अगर आपके अंदर है वो पैशन तो आप बन सकते हो. अदरवाइज मैंने बहुत से एक्टर्स ऐसे देखे हैं जो कि बहुत 10-10 सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उनको एक्टिंग नहीं आती. I'm sorry to say, because I'm very blunt like that. Apart from that, I think singing के लिए I would say yes, I did. और गिटारिंग का मुझे शौक था गिटार बजाने का. तो मैंने सर आबिद होते हैं गिटार स्कूल में लाहौर. I was in Lahore at that time. Now I've shifted to Karachi with my husband. So वहाँ पे मैंने गिटार सीखा थोड़ा सा. I think 3-4 months, and then Sir Imran Jafri हैं बहुत अच्छे vocalist and he is a vocal teacher. उनसे मैंने क्लासिकल सिंगिंग थोड़ा अरसा ली, बहुत मजा आया. लेकिन मैंने कोई चीज बहुत ज्यादा लाइक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट. तो आई से कि एवरीथिंग जस्ट कम्स नेचुरली. मतलब मुझे शौक था तो मैंने कर लिया. लेकिन मैं ये एग्री करती हूँ इस बात से जो आपने बोली है कि अगर कोई चीज आपको इतनी पसंद है, आपका पैशन है, आपको जरूर उसके लिए एक
ट्रेनिंग किसी अच्छा प्रॉपर टीचर उस्ताद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली मुझे उस ज़माने में बिल्कुल कोई इस तरह से नहीं, जैसे आपको मैंने बताया कि उस ज़माने में आपको इतना कोई हेल्प नहीं करता था इन चीज़ों में। तो जो मतलब मैं 90s की बात कर रही हूँ और अर्ली 2000s की, माय व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो देयर वर नो उस्ताद्स एट दैट टाइम एंड नोबडी वाज गोइंग टू गिव मी एन उस्ताद। ठीक है, तो उस वक्त आपको कोई सपोर्ट भी नहीं होता कि क्या तुमने सिंगिंग करनी है टाइप सीन। और बहुत जो एलीट फैमिलीज में थी तो उनको शायद अलाउंस थी कि आप जाएं स्टूडियो में लाख रुपया लगाएं और गाना रिकॉर्ड कराएं। सो आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन। मैं करियोकीज रिकॉर्ड करती थी अपने That's फोन के great. ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर। सो या Okay, and tell me one more thing. I mean, it's totally understandable कि 2000 में 90s में there were not so many institutions जहाँ पे लोग जाएं और singing सीखते, acting सीखते. The way you were mentioning about the vocal expert, I don't think कि उस वक्त भी पाकिस्तान में इतना कोई concept भी होगा vocal expert का. आज के दौर में ये skills मतलब is it really common that people are teaching and students are learning? I mean, ये skills की proper availability है अगर कोई actor बनना चाहता है, कोई singer बनना चाहता है, तो उसको पहले तो ये बताइए कि सीखना जरूरी भी है, और अगर जरूरी है तो क्या प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्टर्स इसके मौजूद हैं यहाँ पे? Okay, so I would say that obviously since I'm not a professional actor, I can't really give my own opinions. लेकिन मैं मतलब अपने opinion दे सकती हूँ, लेकिन वो कोई इतना count नहीं करता उस sense में कि it's just my frame of reference. But I would say since obviously my husband is also a professional actor, और हमारी ये डिस्कशन होती है कि यहाँ पे बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे जो कि म्यूजिक की प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं स्टूडेंट्स को, या जो एक्टिंग, और बल्कि दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वांटेड टू अरेंज फॉर द स्टूडेंट्स है, और इन लाहौर वेयर वी कैन जस्ट हैव क्लासेस अबाउट एक तो मेरे ख्याल से क्लासिकल सिंगिंग की काफ़ी कोर्सेज हैं, लेकिन अगर कोई रॉक सिंगिंग सीखना चाहता है फॉर एग्जांपल, या कोई ब्लैक हेवी मेटल सीखना चाहता है, या कोई किसी को फलानी चीज का शौक है, व्हाटएवर, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे टीचर्स को सिर्फ ये होता है कि क्लासिकल सीख लेंगे आप सब कुछ गा लेंगे, ऐसे नहीं होता। क्लासिकल सीखेंगे आप सब कुछ गाएंगे, आपका ऑब्वियसली यू हैव डिफरेंट ऑक्टेव्स, आपको पता होगा कि मैंने यहाँ वाला सुर लगाना है, ये लगाना है, लेकिन वो आपकी ट्रेनिंग किसी और वे में हो रही है ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप रोड पे तेज गाड़ी चलाओगे तो आप Formula 1 ड्राइवर बन जाओगे, ऐसे नहीं होता। you need a specific kind of training for something, right? And so मेरी बहुत ज्यादा वेस्टर्न वोकल्स थे हमेशा से, क्योंकि मुझे वेस्टर्न सिंगिंग का शौक था, लेकिन जब मैंने क्लासिकल सीखी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने उसको कैसे गाना है, इवन दो आई कुड हिट सम नोट्स जो मैं पहले नहीं गा सकती थी, लेकिन फिर भी वो एक कंफ्यूजन सी होती है। तो मेरे ख्याल से इतनी चॉइस नहीं है अभी हमारे पास पाकिस्तान में। अभी आई वुड से कि फिर भी बेहतर है सिचुएशन। पहले तो कुछ भी इतना खास नहीं था, मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि कोई इस तरह से ट्रेनिंग ले रहा होता है घर पे। देन अगेन प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स नहीं है, जैसे अलहमरा है लाहौर में, वहाँ के अलावा मैंने नहीं सुना कि कहीं पे होता है, या तो घरों में बुलाते हैं लोग अपना ट्रेनर वगैरह को, वो भी फिर कम्स विद प्रोज एंड कॉन्स, जहाँ पे ऊंची आवाज आ रही है तो इधर ना गाओ, तो वो ना करो तो नेबर्स कुछ और जा रहा है, इधर यहाँ पे इस तरह के इश्यूज भी होते हैं। तो आई से कि अब इट्स अ लिटिल बेटर, यानी कि नापा में, जैसे नापा कराची जो है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलती है एक्टिंग की, आपको सीखते हैं प्रॉपरली, आपको ऑडिटोरियम में एक्ट करने का चांस भी मिलता है। तो हाँ, आई वुड से आई वुड रेकमेंड इफ समबडी वांट्स टू बिकम एन एक्टर, किसी थिएटर को जरूर ज्वाइन करें, लाइक थिएटर कूप को ज्वाइन करें, या किसी थिएटर प्ले में एक्ट करें, जो मैंने किया था, क्योंकि थिएटर से आपका एक्सप्रेशन, आपकी आवाज, हर चीज का टेस्ट वहां से शुरू होता है। तो मेरे ख्याल से इट्स द बेस्ट थिंग टू डू इफ यू वांट टू टेक अप एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट। और ये बड़ा जरूरी है जब आप एक्टिंग के अंदर भी होते हैं या सिंगिंग, ये दोनों चीजें आपकी डिलीवरी ऑफ वर्ड से रिलेटेड हैं, तो इसके ऊपर आपकी कमांड होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, या डेफिनेटली 100%। इसके अलावा मुझे ये बताइए कि इफ यू आई मीन यू आर ऑलरेडी वर्किंग एंड योर हस्बैंड इज आल्सो वर्किंग, सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट अदर स्किल्स एन एक्टर or might be a singer must have before jumping into the workplace, before jumping into this field? कोई और भी स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, या जो वर्कप्लेस चैलेंजेस होते हैं जिसके लिए आपको लगे कि माइट बी वो टाइम मैनेजमेंट हो सकती है, माइट बी वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, माइट बी प्रेशर हैंडलिंग हो सकती है, या फेलियर मैनेजमेंट हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक, लाइक इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो एक पूरा आपको एक पैकेज बनाती हैं, इफ देयर आर फ्यू? I just have
2 words for that, thick skin. कम यानी अगेन. कि आपने कुछ भी करना है ना लाइफ में, तो यू नीड अ थिक स्किन. थिक स्किन से मतलब है कि आपको कोई भी कुछ भी कह रहा है, आपको अफेक्ट ना करे. आपको जजमेंट मिल रही है, आपको क्रिटिक मिल रही है, आपको लोग कह रहे हैं आपकी शक्ल नहीं अच्छी, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप काले हैं, आपके बाल नहीं अच्छे, आपको एक्टिंग नहीं आती, आपकी आवाज नहीं अच्छी. तो आपने उसको एज क्रिटिक फ्रॉम समबडी रैंडम लेके आपने उसको साइड पे कर देना है. आपने अपने आर्ट को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि बिलीव इट और नॉट मुझे इसमें से एटलीस्ट 90% चीजें तो मैंने सुन ली हुई हैं. तो मैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी रिगार्ड नहीं करती, बिकॉज वो आती हैं किसी ऐसे इंसान से जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुका हुआ है कि एक लड़की जो है अगर ड्रामे में आ रही है वो चिट्टी होनी चाहिए, उसका मुंह छोटा होना चाहिए, उसके बाल बहुत लंबे होने चाहिए, उसकी उम्र 20 साल होनी चाहिए, उसके बच्चे नहीं होने चाहिए. मुझे लिटरली इस तरह की कम्युनिकेशन भी हो चुकी हुई है मेरी लोगों के साथ, वे दे वुड से कि यू नो यू मैरिड, अच्छा नहीं वैसे शादी नहीं, हाँ मुझे लेट करनी चाहिए, या आपके गाल बहुत बड़े हैं, आप स्क्रीन पे अच्छी नहीं आएंगी, तो आप ऐसा करें कि आप अपने गाल पहले कम करें और फिर आप आए हमारे पास एक्टिंग करने. ठीक है. Whereas in India और other places, हॉलीवुड में वो 60-60 year old एक्टर्स को या मोटे एक्टर्स को लीड रोल्स देते हैं और उनके मुताबिक मूवीज बनती हैं या उनके मुताबिक ड्रामास बनते हैं उस तरह के रोल्स के लिए. ऐसे नहीं होता कि सिर्फ एक पतली दुबली लड़की जो है वो बस 10-15 वैसे ही रखती हूँ. डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़े से मोटे हो जाएं तो आपको अम्मी का रोल मिलता है या फिर आपको एक सपोर्टिंग कास्ट में डाल देते हैं, यू नो, एज अ फ्रेंड. तो ये एक आइड से कि है हमारे मुआशरे में, तो नहीं कहूंगी, वैसे मुआशरे में भी कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे ख्याल से औरतों के साथ शादियों के वक्त भी ये सब कुछ होता है, जब उनकी अरेंज मैरिजेस हो रही होती हैं या कोई देखने आता है घरों में, जैसे होता है हमारे, which is what I'm completely against, लेकिन वो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है. तो मेरे ख्याल से कि आइड से कि और रोज देने चाहिए लोगों को, और हमें थोड़ा सा और एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाना चाहिए. हमारे अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सेस भरे हुए हैं एज अ नेशन, और हमें उनको जरा थोड़ा साइड पे कर देना चाहिए, फिर यू नो, जस्ट टू मूव सो ऑन वन विद लाइफ. लास्ट थिंग मुझे ये बताइए, जैसे भी हम तो लोग ये अभी बात होती कर हैं रहे थे डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस, ऑफ बट यू हैव वर्ड्स. टू बी वेरी थिक स्किन. और मैंने कहा जैसे भी हम बात कर रहे थे डिलीवरी ऑफ वर्ड्स की, अब हमारा श्योर, गो अहेड. पूरे एजुकेशन सिस्टम या में तो हम ये देखते हैं कि वहां पे रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस है, और आप किसी भी प्रोफेशन में चला जाएं, स्पीकिंग के ऊपर आप लाइक यू आर नॉट ट्रेन्ड इन अ वे दैट यू कैन स्पीक फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं हुआ. इसको आपने किस तरह से, इस चैलेंज को कैसे आपने फेस किया कि आपने पूरा एजुकेशन सिस्टम गुजारा जिसके अंदर आप सिर्फ किताबें पढ़ रहे थे और एग्जाम में लिख रहे थे, उसकी बेसिस के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन फिर सिंगिंग और एक्टिंग इन दोनों फील्ड के अंदर आपको वो काम करना था जो हमें बिल्कुल नहीं सिखाया जाता. तो ऑफ कोर्स दैट इज द रीजन नॉट एवरीबॉडी कैन डू दैट. तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू टेक दैट, कि उसके ऊपर क्या चैलेंजेस आपको आए या नहीं आए, या उसको आपने कैसे टैकल किया, या उसको आपने कैसे इंप्रूव किया विद द पैसेज ऑफ टाइम? I think it's a very intelligent question, firstly, because ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपने जैसे पॉइंट किया, it is 100% true. यहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे फ्रेंड्स को देखा है जो कि एक्टिंग करना चाहती हैं, बहुत से बॉयज़ जो एक्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनमें वो मार्जिन नहीं है एक्सप्रेशंस का, क्योंकि उनको हमेशा से सप्रेस करके रखा हुआ है, और हमारे घरों में हमें सप्रेस करके रखते हैं. कोई भी इमोशन दिखाने से आप छोटे हो जाते हैं. मेरे ख्याल से लड़कों के लिए ज्यादा कॉमन है ये, लड़कों को ये सिखाया जाता है कि इमोशन नहीं शो करना, रोना नहीं है किसी के सामने, तुम लड़के हो, तुम लड़की नहीं हो. और सो बेसिकली सप्रेस हो रहा है ना इमोशन यहाँ पे. तो जब सप्रेस हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इमोशन कैसे शो करना है या कैसे दिखाना है. फॉर्चुनेटली, क्योंकि आपने देखा नहीं हुआ ना वो एक्सप्रेशन, आपने घर में देखा है ना, आपने खुद कभी, आपने शायद शीशे के सामने कभी देख लिया हो, क्योंकि रोता तो हर कोई है कमरे में अकेले. तो मेरे ख्याल से आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इन द वे कि एक तो मुझे राइटिंग का शौक था, वो इट वॉज माई फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, और मैं राइटिंग में बहुत ब्रूटल हो जाती थी, यानी कि जो चीज़ मैं खुद से शो नहीं कर सकती थी ना, वो मैं अपनी राइटिंग में डालती थी, which was my way of expressing myself. I think हर कोई ये नहीं कर सकता, हर कोई लिख नहीं सकता, ये भी एक प्रॉब्लम होती है. तो एक राइटिंग और एक एक्टिंग मुझे लगता है कि बच्चों को ना शुरू से इंग्रेन करनी चाहिए, जिसमें आप
बेशक आप अपने स्कूल के स्टेज के ऊपर आप छोटा मोटा प्ले कर रहे हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स टू लर्न, आई थिंक, एज अ टीचर ऑल्सो, बिकॉज आई ऑल्सो टॉट ड्रामेटिक्स to my students. I was a drama teacher, so I would teach them how to express themselves. And बहुत से ऐसे बच्चे थे जो handicapped भी थे, sorry, disabled थे, differently abled, I'd say, not handicapped. So the differently abled kids were also very expressive when it came to drama. वो क्लास में इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे, लेकिन जब ड्रामा क्लास होती थी और जब म्यूजिक लगता था और मैं उनको कुछ बोलती करने के लिए, they would like to do it, you know. And I think in that way मैं उनकी ट्रेनिंग भी कर रही थी, just to be more expressive in their lives in the future. सो आइड से कि हम अगर किसी चीज को पॉजिटिवली देखेंगे तो वो आपकी परसेप्शन खुद चेंज हो जाती है उस चीज के बारे में. हमने ये परसेप्शन खुद बनाई हुई है कि एक्टिंग एक बुरी चीज है या सिंगिंग एक बुरी चीज है. मतलब अगर हम कीपिंग अपार्ट द ऑल अदर एस्पेक्ट्स जिसमें लोग कहते हैं कि भाई म्यूजिक जो है वो हराम है एक्सेट्रा, हम उसमें नहीं जा रहे अभी. हम इस चीज में जा रहे हैं कि क्यों आपके लिए वोकल्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको लर्न करना क्यों इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह बोलना है, किस तरह बात करनी है. ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है ना, ये तो हम सीख सकते हैं. बात करना बोलना जरूरी नहीं है कि आपने गाने गाने हैं, या एक्सप्रेशन आपका बहुत मैटर करते हैं. मिररिंग एक्सरसाइजेस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं भी एक्टिंग करनी है, आप मिररिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो कि एक एक्टिविटी होती है जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे को कॉपी करते हैं. सो आप सामने खड़े होते हैं, the other person does something, you do the same thing, so you're learning through expression. So there are a lot of activities in the world जो आपको टीच करती हैं how to express yourself better. तो मेरा ख्याल है बचपन से वैसे आनी चाहिए ये चीज, क्योंकि अब मैंने सप्रेशन की बात की कि सप्रेस करते हैं इमोशंस बचपन से ही हमें. नॉट नेसेसरली पेरेंट्स, बट कोई भी कर सकता है, मतलब आके नाना नानी भी कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी कर सकते हैं. तो ये है एक छोटी सी इशू. तो जिससे आप लेकिन इसको काउंटर करने के लिए आप या गो अहेड. जैसे मैंने कहा, आप खुद अभी आपने बताया कि जब आपके पास कोई थॉट्स आते हैं, यू यूजुअली राइट इट डाउन. सो बेसिकली अभी तक मैंने कोई ओरिजिनल एज सच लिखा नहीं है, एंड माय ब्रदर इज काइंड ऑफ लाइक माय बैकबोन, बिकॉज सिंस ही इज डूइंग इट प्रोफेशनली एंड ही इज मोर इनटू इट, उसके पास ज्यादा टाइम भी है. तो वो मेरे सॉन्ग्स भी लिखता है और अपने सॉन्ग्स भी लिखता है, तो उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है. सो लिखाई जो बोलते हैं, वो लिखाई बोलते हैं, लिखाई. तो वो मुझे कहता था कि लिखाई करो, लेकिन मुझे पोइट्री का शौक है, बट मैं इंग्लिश में लिखती हूँ क्योंकि मैंने हमेशा से इंग्लिश में बुक्स पढ़ी हैं, और ये थोड़ा सा एक मेरा मसला है आइड से कि मुझे बॉदर भी करती है बात. मैंने उर्दू की किताबें बहुत कम पढ़ी, मंटो के अलावा मेरा ख्याल, और मैंने इस तरह की किताब पढ़ी होगी बहुत, या एक दो और होंगी जो स्कूल में पढ़ी थी, असगरी और अकबरी टाइप की, जो कि कोर्स का हिस्सा थी. तो इसके अलावा बुक्स उर्दू की मैंने नहीं पढ़ी, और जो बहुत बहुत मेन क्रूशल पॉइंट था, मतलब जो एक जरूरी चीज थी, जो गाने लिखने के लिए आपको उर्दू के अल्फाज आने बहुत जरूरी है, ठीक है. तो वो मेरी फिर लिखाई जो है वो मेरे भाई की ज्यादा अच्छी है, तो वो ही राइट्स द सॉन्ग्स फॉर मी, एंड वी आर कमिंग अप विद अ फ्यू ओरिजिनल्स. लेकिन इसके अलावा मैं जब गिटार बजाती हूँ खुद से लिखती हूँ, वो गाने मैं खुद ही लिखती हूँ. मैंने 2-3 गाने खुद भी लिखे हैं, मैंने साउंड क्लाउड पे अपने लगाए हैं, तो उनकी लिखाई खुद की थी. और जो इंग्लिश के सॉन्ग्स हैं वो भी खुद लिखती हूँ. तो कवर्स जो गाए हैं ऑब्वियसली वो तो किसी और आर्टिस्ट के हैं, वो तो कवर्स ही होते हैं, लेकिन लिख लेती हूँ, तो ऐसा मसला नहीं है. लेकिन शौक नहीं है खुद से अपने गाने लिखने. श्योर, दैट्स ग्रेट. तो वो जो कवर्स हैं वो सारे आपकी YouTube के ऊपर अवेलेबल हैं, या आपकी सिंगिंग YouTube के ऊपर अवेलेबल है सारी? Yeah, so they're available on my YouTube channel and they're available on my SoundCloud also, because SoundCloud पे मैंने एक अली अज़मत का कवर गाया था जो कि बहुत ज़्यादा चल गया था, और ना रे ना के नाम से, और वो उनका एक गाना था जो कि मुझे बहुत पसंद था, और वो मैंने रैंडमली लगाया था, और उसके कोई 300,000 आई थिंक व्यूज है, और मे बी मोर देन दैट. So people really like it, they appreciate it, और मुझे हर जगह से कोई ना कोई मैसेज आ रहा होता है कि आपका गाना सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, रोड ड्राइव पे निकले हुए हैं. तो it really makes me feel very very good that people appreciate. So that's good, I guess. That's amazing. That's why I'm coming out with originals, because they keep pushing me to make something of my own. That's great. So we will be, if you allow, so we'll be sharing the links in the description. I mean, in the description of this interview, of course. So if anybody wants to listen to that, so Yeah, sure, no problem. So we'll be giving that
But anyways, Sana, it was lovely listening to you. Thank you so very much for giving us your time. It was so, I learned a lot Thank you so by much. that Thank by you for your your time. experience. Thank you. So very much, Sana. Take care. Stay blessed. Allah Hafiz.